Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Okay, today we are going to start chapter number 5. It's on page number 25. The name of the chapter is Ali Baba. I want every student to open your novel Arabian Night. Open page number 25. Grab your pencil so that we could underline sentences for MCQ's point of view. Okay, those students who have opened their books, raise your hand. Hurry up, open your book. It's on page number 25. Very good. Okay, I have skipped chapter number 4. Okay, we will definitely study it, but later on, okay, after chapter number 5 and 6. Okay, because chapter number 5 and 6 are the part of your syllabus. Okay, so that's why today we are going to begin chapter number 5 first. Okay, after that we will study chapter number 6 and then we will move on to chapter number 4. Okay, so don't ask me the question why we are studying chapter number 5. Okay, be very attentive in the class, because at the end of the class I will also ask you questions, okay, regarding the chapter. Okay, first of all, let's study the characters of the chapter Ali Baba. There are 5 main characters of the story. The first main character is Ali Baba, okay, and his wife. The second character of the story is Qasim. Qasim is the brother of Ali Baba. And his wife. The third character is leader and his servants. Okay? The leader is the leader of the thief. Okay? And his servants. Okay? All are the part of the character list. The fourth character, the fourth main character of the story is Morgiana. Morgiana is a servant girl, works at Ali Baba's house. The fifth character is the tailor. The name of the tailor is not mentioned in the story. Students do not raise hand. I will answer your questions at the end of the lecture. Okay? Thank you. Okay, let's start our chapter Ali Baba, the first from the very beginning, the magic cave. Okay? Once a long time ago, एक दफा long time ago or many years back, there were 2 brothers. Okay? This is the story of 2 brothers. The first brother was Qasim. Qasim was rich and greedy. Greedy means lalchi, rich means amir, wealthy. Qasim was wealthy. His brother Ali Baba was a kind man. The second person, the second brother Ali Baba, he was a kind man. He worked very hard. He was very hardworking, but he was poor. The main difference between them was Qasim was rich, but Ali Baba was a poor man. Okay. इसके साथ साथ ही स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लाइन्स को भी अंडरलाइन करेंगे. ठीक है, द फर्स्ट लाइन यू हैव टू अंडरलाइन इज कासिम वाज रिच एंड ग्रीडी. ठीक है, द सेकेंड लाइन फ्रॉम द पैराग्राफ, द नेक्स्ट पैराग्राफ इज every day Ali Baba went to the forest with his donkeys. ठीक है,
as I have told you that Ali Baba was a wood, he worked very hard and he was poor. So उसकी जॉब क्या थी? एवरी डे अली बाबा वेंट टू द फॉरेस्ट विद हिज डोंकी, वो अपने डोंकी के साथ फॉरेस्ट में जाया करता था. देयर ही कट वुड, ठीक है, ही वाज अ वुड कटर, ठीक है. देयर ही कट वुड विच ही सोल्ड इन द मार्केट, जो कि वो मार्केट में बाद में उनको सेल आउट कर दिया करता था, उनको बेच दिया करता था और उससे वो पैसे कमाता था, ठीक है. हिज ऑक्यूपेशन वाज कटिंग वुड, ही वाज अ वुड कटर and he was not very rich. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. वन डे अली बाबा वॉज कटिंग वुड, एक दिन जब वो वुड काट रहा था, लकड़ियां काट रहा था, व्हेन ही सा बिग क्लाउड ऑफ डस्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है. उसने क्या देखा? अ बिग क्लाउड ऑफ डस्ट, डस्ट को उड़ते हुए क्लाउड को उसने देखा इन फ्रंट ऑफ हिम, बिल्कुल उसके सामने. इट केम क्लोजर टू वेयर ही वॉज, ठीक है, और वो वहां तक पहुंच गया, डस्ट ऑफ क्लाउड, जहां पर अली बाबा मौजूद था, ठीक है, where he was standing. Then he heard the noise of many horses. फिर उसने heard, उसने सुना the noise of many horses, बहुत सारे घोड़ों का शोर सुना, ठीक है, उनको आते हुए उसने सुना. Some people were coming, कुछ लोग आ रहे थे. Ali Baba was little frightened. He was little scared when he heard the voice of horses and he thought that some people are coming. ठीक है. He hid his donkeys behind a big rock. ठीक है. Hid means to hide something, to conceal, छुपा देना. उसने अपने डोंकी को एक where it was, sorry, he hid his donkeys behind a big rock. ठीक है, उसने डोंकी को अपने पीछे एक रॉक में के पीछे उसने छुपा दिया. Then he climbed up into a tree. फिर वो ट्री पर चढ़ गया. The tree had big leaves and no one could see him there. ठीक है, ट्री के बिग लीव्स थे. No one could see him there. वहां से जहां उसको कोई भी नहीं देख सकता था, ठीक है, because he hid himself behind the leaves. Ali Baba looked through the leaves. अली बाबा ने पत्तों में से देखा. He saw 40 men on black horses. ठीक है, उसने क्या देखा? 40 men on black horses. उसने काले घोड़ों पर 40 मैन को आते हुए देखा, ठीक है. 40 लोग थे जो कि आ रहे थे. एंड ऑल ऑफ देम वर थीव्स. अंडरलाइन दिस लाइन. दे स्टॉप जस्ट अंडर द ट्री, ठीक है, और वो बिल्कुल उस ट्री के नीचे स्टॉप हो गए, रुक गए, जहां पर वो छुपा हुआ था पत्तों में, ठीक है, ऊपर. बट दे डिड नॉट लुक अप, लेकिन उन्होंने ऊपर नहीं देखा. दे लुक्ड एट अ बिग वॉल ऑफ रॉक अ फ्यू यार्ड्स अवे. उन्होंने एक बिग वॉल ऑफ रॉक को देखा, एक चट्टान, वॉल दीवार की जैसी चट्टान थी जिसको उन्होंने देखा, जो कि कहाँ पे मौजूद थी? अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है. यार्ड्स क्या होता है? 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, ठीक है. 3 फुट दूर, 3 फीट दूर के डिस्टेंस पर उन्होंने क्या देखा? एक वॉल ऑफ रॉक को देखा. ओपन सीसम कॉल्ड द लीडर ऑफ द मैन, ठीक है, तमाम लोगों के लीडर ने क्या कहा? खुल जा सिमसिम, ठीक है. द वॉल ऑफ रॉक ओपन वाइड एंड अली बाबा saw a large dark cave. ठीक है, द अंडरलाइन दिस लाइन. द वॉल ऑफ रॉक ओपन वाइड, ठीक है, जब उन्होंने एक मैजिक वर्ड ओपन सीसम कहा, ठीक है, तो वॉल ऑफ रॉक जो सा है वो ओपन हो गया. वाइड, बहुत ज्यादा वाइडली वो ओपन हो गया. और अली बाबा ने क्या देखा? अ डार्क केव, एक अंधेरा, डार्कनेस के अंदर एक उसने केव को देखा, ठीक है. The man took some heavy bags off their horses and carried them into the cave. ठीक है, और मैन ने क्या किया? हैवी बैग्स जो उन्होंने अपने घोड़ों पर
रखे हुए थे उनको वहां से उठाया और उसको केव में, गार में ले गए। केव किसको कहते हैं? गार को कहते हैं, ठीक है। द बैग्स वर फुल ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड ज्यूल्स, ठीक है। द बैग वाज फिल्ड विद गोल्ड, सिल्वर एंड ज्यूल्स। ज्यूल्स मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्नामेंट्स, जवाहरात, ठीक है। उसके अंदर सोना, चांदी और डिफरेंट जवाहरात थे उनके बैग्स में। These men are thieves, said Ali Baba to himself. अली बाबा ने खुद से क्या कहा? These men are thieves. ये तमाम लोग चोर हैं. They are hiding their things they have stolen in their magic cave. ठीक है। और यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? अपनी चुराई हुई चीजों को यहाँ पर मैजिक केव के अंदर छुपा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। He saw the robbers come out again. उसने देखा कि robbers, thieves जो हैं वो अब दोबारा वापस आ रहे हैं. The next page. They climbed on their horses. वो अपने घोड़ों पर सवार हो गए. The chief shouted. और चीफ ने ऊंची आवाज से क्या कहा? Close sesame. ठीक है, बंद हो जा या सिम सिम, ठीक है। The door of the cave shut. फिर क्या हुआ? केव का दरवाजा बंद हो गया. Then they all rode away. और वो तमाम लोग, तमाम thieves जो हैं वो वहां से चले गए, ठीक है। Ali Baba is rich. In the next paragraph, when the air was still and quiet again, Ali Baba climbed down from his tree. ठीक है। When he feels safe, जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है, all those thieves are gone. फिर उसने क्या किया? वो नीचे उतर गया. Climbed down from his tree. He stood in front of the wall of rock and shouted. फिर वो उस रॉक के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, ओपन सीसम, खुल जा सिम सिम. मोमिना अली, टर्न ऑफ योर वीडियो. गुड. At once, उसी वक्त the cave door opened and Ali Baba went inside. ठीक है, उसी वक्त केव, गार का दरवाजा खुल गया और अली बाबा अंदर चला गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, the cave was full of treasure. Underline this line. उस केव में क्या था? The cave was full of treasure. उसमें खजाना था, ठीक है। उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात थे. The cave was filled with silver, gold and jewels. Ali Baba took a small bag of gold. अली बाबा ने एक बैग उठाया जिसमें गोल्ड पड़े हुए थे. It was almost too heavy for him to move, but he got it outside at last. ठीक है, जब उसने एक बैग उठाया जिसमें गोल्ड पड़ा हुआ था, गोल्ड कॉइन्स थे उसके अंदर, तो वो बैग क्या था? It was very heavy for him to move, जिसको वो उठा के मूव नहीं कर पा रहा था. लेकिन क्या हुआ? He got outside at last. आखिरकार वो मुश्किल से उस बैग को लेके उस गार से बाहर आ गया. Close sesame, बंद हो जा सिम सिम, he said. उसने कहा. The cave door closed. केव का जो डोर था वो बंद हो गया. Then he put his treasure on the back of one of his donkeys. ठीक है, और फिर उसने अब जो ट्रेजर जो उसने वहां से लिया था उसको एक डोंकी की बैक पे रखा. He put some wood on top. उसके ऊपर उसने कुछ लकड़ी रखी. Then he went home. और वो घर चला गया. His wife was very excited. वो बहुत खुश हुई and she began to count the gold. ठीक है, और बाद फिर उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसने गोल्ड को काउंट करना शुरू कर दिया, गिनना शुरू कर दिया. There was so much. वो बहुत ज्यादा था. She got as far as 100 pieces. Then she forgot. ठीक है, वो गोल्ड इतना सारा था. जब वो 100 पीसेस तक पहुंची, then she forgot. और फिर वो भूल गई. And had to start again. और फिर उसे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है. Underline this line. She got as far as 100 pieces, then she forgot, had to start again. I can't count all this gold, she said to her husband. उसने अपने husband को कहा कि मैं इस गोल्ड को काउंट नहीं कर सकती. There is enough to make us rich, said Ali Baba. अली बाबा ने कहा कि ये हमें रिच करने के लिए
काफी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके पेपर में ऐसी लाइंस भी आ सकती हैं, देयर इज इनफ टू मेक अस रिच। ठीक है, ये लिखा हुआ होगा और आपसे पूछा जाएगा ये किसने कहा है। ठीक है ना, हु सेड दिस। तो आगे नीचे आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे, अली बाबा, कासिम और चीफ ऑफ थीफ, मार्जियाना और समथिंग। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस गिवन होंगे जिसमें आपने ये बताना होगा कि ये स्टेटमेंट किसने बोली है। ठीक है, आपके पास एमसीक्यूज नेक्स्ट टाइम इस तरह से भी आ सकते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू काउंट इट, तुम इसे काउंट क्यों करना चाहती हो। बट हिज वाइफ वॉज अनहैप्पी, लेकिन उसकी वाइफ ना खुश थी। शी वॉन्टेड टू नो हाउ रिच शी वॉज, वो ये जानना चाहती थी कि वो कितनी अमीर हो चुकी है। शी वेंट टू कासिम्स वाइफ एंड आस्क्ड हर फॉर हर स्केल्स। ठीक है, और फिर वो कासिम्स वाइफ के पास गई, भाई की वाइफ के पास गई और उससे उसने कहा कि उसको अपना स्केल्स दे दें। स्केल्स क्या होता है, स्केल इज अ टाइप ऑफ वेइंग मशीन। ठीक है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है, दिस इज वेइंग मशीन जिसके ऊपर हम स्केल्स रखते हैं, वेट रखते हैं। ठीक है, स्केल्स इज द अनदर वर्ड फॉर वेट। ठीक है, वेट 5 ग्राम्स का भी हो सकता है, 5 किलोस का भी हो सकता है, 10 पाउंड्स का भी हो सकता है। ये हम क्यों यूज करते हैं, टू मेजर थिंग्स। ठीक है, हम इसकी लेफ्ट साइड पर जो मटेरियल हमने मेजर करना होता है, जिसको हमने नापना होता है, जिसके हमने वेट देखना होता है, हम उसके जरिए स्केल्स के जरिए उनको मेजर कर लेते हैं कि ये कितना है। ठीक है, अगर ये बैलेंस में आ जाता है तो इट मींस कि जो आपने वेट रखा हुआ है ये उसके इक्वलेंट है। ठीक है, अगर ये मेजर में अप एंड डाउन होता है तो अप होने का मतलब है कि ये उसका वेट इससे कम है, और डाउन होने का मतलब है कि इसका वेट आप स्केल से या फिर वेट से ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हाउ इट वर्क्स। नेक्स्ट देखते हैं, कासिम्स वाइफ सेड टू हरसेल्फ, okay, where I was here. Qasim's wife said to herself, Qasim की वाइफ ने खुद से कहा, why does Ali Baba's wife want my scales? ठीक है, अली बाबा की वाइफ ये my scales, मेरे वेट्स क्यों चाहती है। she always wanted to know all about everything. ठीक है, she was a very curious person. कासिम्स की जो वाइफ थी, she was very curious about knowing things. तो उसको हम हमेशा इस चीज का तजस्सुस रहता था कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है, बिफोर शी गेव द स्केल्स टू अली बाबा's वाइफ, उस अली बाबा की वाइफ को स्केल्स वेट्स देने से पहले उसने क्या किया, शी रब्ड अ लिटिल फैट ऑन देम। ठीक है, उसने क्या किया, उसके ऊपर थोड़ा सा फैट लगा दिया। फैट मीन्स स्टिकी मटेरियल, स्टिक जो चिपकता है मटेरियल, उसने वो उसके ऊपर थोड़ा सा वेट के नीचे लगा दिया। ठीक है, अली बाबा's वाइफ रैन होम, अपने घर वापस आ गई दौड़ती हुई, एंड वेट द गोल्ड कॉइन्स, और फिर उसने गोल्ड कॉइन्स का वेट किया। ठीक है, उसका वजन किया। देन शी गेव द स्केल्स बैक टू कासिम्स वाइफ, फिर उसने उस वेट को क्या किया, कासिम की वाइफ को वापस कर दिया। She did not notice that one small gold coin was stuck to the bottom of the scales. ठीक है, उसने ये चीज नोटिस नहीं की, उसने ये चीज नहीं देखा कि एक स्मॉल गोल्ड कॉइन जो है वो स्केल के वेट के नीचे चिपक गया था। स्टक का मतलब होता है अटैच हो जाना, चिपक जाना किसी के साथ। ठीक है, अंडरलाइन दिस लाइन एज वेल। Let's move on. A greedy man. Qasim's wife showed the coins to her husband. कासिम की वाइफ ने उन कॉइन्स को अपने हस्बैंड को दिखाया। I thought your brother was a poor man, she cried. ठीक है, उसने ऊंची आवाज से कहा कि मुझे लगता था कि तुम्हारा भाई जो है वो पुअर है, वो गरीब है। But now his wife has so much gold that she has to wait it. ठीक है, उसने क्या कहा, और अब उसकी वाइफ के पास इतना गोल्ड है कि उसको उसका वजन करना पड़ रहा है। कासिम वॉज एंग्री। ठीक है, कासिम को गुस्सा आया इस बात पे। ही वेंट टू अली बाबा's हाउस टू टॉक टू हिम। ठीक है, वो अली बाबा के घर पर गया उससे बात करने के लिए। Where did you get your gold, brother? ठीक है, उसने क्या पूछा कि तुमने ये गोल्ड कहाँ से लिया। He asked अली बाबा, उसने अली बाबा से पूछा। अली बाबा had to tell him the story of the thieves and the caves. फिर अली बाबा को उसको क्या करना पड़ा, थीव्स चोरों की और केव गार की स्टोरी उसको सुनाना पड़ी।
had to means उसको ये काम करना पड़ा. had to जब हम यूज करते हैं या have to यूज करते हैं, इट मीन्स ये काम आपको करना पड़ रहा है. Qasim wanted all the treasure for himself. ठीक है, he was a greedy person. ठीक है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, और वो क्या चाहता था, वो तमाम ट्रेजर खजाना अपने पास रखना चाहता था. For days he followed Ali Baba into the forest. ठीक है, उसने चुपके से क्या किया, अली बाबा का पीछा किया. For days, कई दिनों तक उसने अली बाबा का पीछा किया, और फॉरेस्ट में अली बाबा का उसने पीछा किया. एट लास्ट, आखिरकार अली बाबा वेंट टू द केव एंड गेट अनदर स्मॉल बैग ऑफ गोल्ड. ठीक है, और आखिरकार उसको वो चीज मिल गई जो वो ढूंढना चाहता था. अली बाबा कार के पास गया और उसने अनदर बैग ऑफ गोल्ड लेने के लिए, जी सॉरी, जी जी, okay, where I was right. Yes, for days he followed Ali Baba into the forest. ठीक है, कई दिनों तक उसने अली बाबा का पीछा किया. एट लास्ट उसे वो चीज मिल गई, केव मिल गया, या जिसको वो देखना ढूंढना चाहता था. अली बाबा went to the cave to get another small bag of gold. वो एक और स्मॉल बैग ऑफ गोल्ड को लेने के लिए केव में गया था. कासिम hid behind a rock. वो चट्टान के पीछे छुप गया. एंड watched, और उसने देखा. ओपन सीसम, खुल जा सिमसिम, सेड अली बाबा. अली बाबा ने कहा. ठीक है, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक हियर, इट्स अली बाबा. ठीक है, एंड द डोर ऑफ द केव ओपन, और इसी तरह से केव का डोर ओपन हो गया. आई मस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स, सेड कासिम टू हिमसेल्फ. कासिम ने खुद से क्या कहा, आई मस्ट रिमेंबर दोज वर्ड्स, मुझे ये लफ्ज याद रखने चाहिए. आई शुड कीप इट इन my mind. ठीक है, next day Qasim went to the wall of rock and said. The very next day, the following day, उसने क्या किया, wall of rock के पास गया और उसने कहा, open sesame. The cave door opened. ठीक है, the word was a little wrong, but door somehow opened. ठीक है, दरवाजा खुल गया and Qasim ran inside, और कासिम अंदर चला गया. Close sesame, he called. उसने कहा, close, बंद हो जा सिमसिम. He did not want to leave the door open. वो डोर को खुला नहीं छोड़ना चाहता था. He wanted to be in the cave a long time. ठीक है, वो उस केव में बहुत देर तक के लिए रहना चाहता था. He wanted to look at all the wonderful gold and silver jewels. ठीक है, underline this line. वो ये चाहता था कि वो गोल्ड, वंडरफुल, शानदार गोल्ड, सिल्वर एंड जूल्स को देखता रहे. He picked up a large bag. उसने एक लार्ज बैग उठाया एंड स्लोली फिल्ड इट विद लवली थिंग्स. ठीक है, और जो जो चीजें उसको अच्छी लगी उसने उसको भर लिया. At last, when the bag was full, आखिरकार जब वो बैग फुल हो गया, he went back to the cave door. वो केव डोर के पास वापस गया. Open sesame, he shouted. वो चिल्लाया. Open sesame. This time the word was totally wrong. ठीक है, nothing happened. कुछ भी नहीं हुआ. Open me said Qasim. Qasim ने क्या कहा? This time the word was also wrong. Still nothing happened. कुछ भी ना हुआ. Poor Qasim had forgotten the magic word. ठीक है, और कासिम बेचारा मैजिक वर्ड्स को अब तक भूल चुका था. He could not get out. अब वो बाहर नहीं आ सकता था. Underline this line, magic word. Poor Qasim had forgotten the magic word. मैजिक वर्ड को भूल चुका था. He could not get out. वो वहां से बाहर नहीं आ सकता था. For hours and hours he tried again and again. ठीक है, for hours and hours, कई घंटों तक उसने बहुत कोशिश की, बार बार उसने कोशिश की, but nothing happened. Qasim's body. Next, what happened next was, then the door opened, but not because of Qasim. फिर क्या हुआ, दरवाजा खुल गया, but that was not the Qasim. ठीक है, उसने दरवाजा नहीं खोला था. The thieves had come.
चोर वापस आ चुके थे. दे हैड ओपन द केव डोर फ्रॉम द आउटसाइड. उन्होंने केव डोर को बाहर से खोला था. ठीक है. they were bringing more treasure. ठीक है, वो और ज्यादा खजाना लेकर आ रहे थे. when the robbers came into the cave they saw Qasim. ठीक है, जब robbers केव में आए उन्होंने कासिम को देखा. they were cruel men. वो बहुत ज्यादा जालिम थे. they were very hard hearted. they took out their knives and killed him. ठीक है, what happened next is they killed Qasim. ठीक है, with their knives. they cut his body into small pieces. ठीक है, what happened to Qasim? उन्होंने क्या किया, उसको मार डाला और उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिए. then they went away again. और फिर वो वापस चले गए. night came. Underline this line. They took out their knives and killed him. They cut his body into small pieces. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस ने कासिम की बॉडी को पीसेस में कट कर दिया था. ठीक है, एज अ क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आपके पास आ सकता है. नाइट केम एंड कासिम डिड नॉट कम होम फॉर डिनर. ठीक है, रात हो गई और कासिम डिनर के लिए घर वापस नहीं आया. His wife went to Ali Baba. उसकी वाइफ अली बाबा के पास गई. She told him that Qasim had gone to the magic cave. उसने उसको बताया कि कासिम मैजिक केव की तरफ जा चुका था. अली बाबा thought that, अली बाबा ने ये सोचा, his brother was in danger. ठीक है, कि उसका भाई डेंजर में है. He hurried to the cave. वो केव की तरफ दौड़ा. There he found the pieces of Qasim's body on the floor. जहाँ पे उसने कासिम के टुकड़े देखे जमीन पर. Sadly, वो बहुत उसको अफसोस हुआ. He collected अफसोस हुआ. Then what did he do? Next is he collected them together and took them home. और उसने तमाम पीसेस उठाए और उनको घर तक ले आया. ठीक है. Ali Baba had a good, clever servant. ठीक है. Underline this line and the next line as well. अली बाबा हैड अ गुड क्लेवर सर्वेंट गर्ल. ठीक है, उसकी एक बहुत चालाक गुड अच्छी सर्वेंट गर्ल थी. हर नेम वाज मोर्जियाना. उसका नाम मोर्जियाना था. शी हेल्प अली बाबाज वाइफ इन द हाउस. ठीक है, उसने अली बाबाज वाइफ की हेल्प की थी घर में. व्हेन अली बाबा केम होम ही शोड हर द लिटिल पीसेस ऑफ कासिम्स बॉडी. ठीक है, जब अली बाबा घर आया उसने कासिम की बॉडी के पीसेस को दिखाया. What can we do? अब हम क्या करें? He asked. उसने कहा. When we bury Qasim, everyone will see his body is in pieces. ठीक है, जब हम कासिम को दफनाएंगे तो हर कोई ये देख सकेगा कि उसकी बॉडी पीसेस में है. They will all start talking. ठीक है, वो तमाम बातें करना शुरू कर देंगे. Then the thieves will hear about it. थीव्स को इस बारे में पता चल जाएगा. दे विल नो द मैन इन द केव वाज कासिम. उनको पता चल जाएगा कि कासिम ही इंसान वो था जो कि केव में मौजूद था. दे विल लर्न दैट. फिर वो ये पता करेंगे दैट आई एम हिज ब्रदर. मैं उसका भाई हूँ. देन क्या होगा? व्हाट हैपन नेक्स्ट इज दे विल कम here and kill us all. और फिर वो यहाँ आएंगे और हम सबको मार डालेंगे. Leave it to me, said Morgiana. Morgiana ने क्या कहा कि ये मेरे पर छोड़ दो. The rest of the things leave it to me. मेरे पर छोड़ दे. I will do it. I will handle everything. ठीक हो गया? Okay, students, the time is running short. So let's move to the question answering session. I hope यहाँ तक आपको स्टोरी बहुत अच्छी समझ आ गई होगी. The rest of the story we will start tomorrow and we will inshallah finish it on tomorrow. And then I will ask you question at the end of the lesson. Okay, now if you have any question, you can ask me.